to keep mobiles, Bluetooth and GPS location on. So where does all this Congress Legislative Party passes resolution to initiate disciplinary action against Sachin Pilot and other rebel MLAs. On the other hand, Pilot camp adamant on position of talks on topic no less than removal of Ashok Gehlot from CM's position. Claim support of 22 MLAs, BJP calls meeting of state leaders to discuss current political situation. India and China military talks underway, meeting expected to carry forward process of disengagement along the LAC, which began after talks between NSA Ajit Doval and Chinese Foreign Minister Wang Yi. Union Minister Nitin Gadkari lays foundation stone of national highway projects in Haryana, says government investing 1 lakh crore in Delhi-Mumbai highway project. Also says government is committed to create 5 crore jobs in MSME sector in next 5 years. Flood situation worsens in Assam with Brahmaputra and its tributaries crossing the danger mark. Over 21,60,000 people affected with 6 more deaths. Water level of Ganga steadies in Bihar. COVID-19 recovery rate in India stays above 63%. Recovery rate higher than national average in 19 states. More than 2,86,000 samples tested in last 24 hours across the country. Lockdown in force in Kalburgi. Bangalore also to go under lockdown for a week from tonight to curb spread of the virus. And global COVID-19 cases rise to 1 crore 31 lakhs with over 5,73,000 deaths. WHO chief again warns that the pandemic may get worse if people do not follow basic public health principles. Hello and welcome to this edition of the news, and first up we bring you all the updates on the Rajasthan political crisis. The Congress Party second legislative party meet is currently underway at Fairmont Hotel in Jaipur. In a big development, a resolution initiating disciplinary action against Deputy Chief Minister Sachin Pilot and other MLAs who were not present at the meeting has been passed. The resolution was laid by Shanti Dhariwal. Following the development, Sachin Pilot could be suspended from all posts, including that of Deputy CM of the state and state party president. Yesterday, the Rajasthan CLP passed a resolution to extend support to the Ashok Gehlot-led government. Meanwhile, Sachin Pilot and all MLAs supporting him have skipped the meeting. Bhawarlal Sharma, supporter of Pilot, says 22 MLAs are with Pilot. He also said they will accept nothing less than removal of Ashok Gehlot. He added that if this demand is not accepted, they will return to Jaipur only during the floor test. They also clarified that they have not had any talks with the Congress High Command in this regard. Meanwhile, in a statement issued by Sachin Pilot's camp, it has been said, I quote, "We are taking a stand to protect our dignity and self-respect at a time when our leader is threatened with notices from the SOG under charges of sedition and criminal conspiracy. This is unprecedented in Indian democracy and the Congress Party, for whom we have toiled with sweat and blood. Under the leadership of Shri Sachin Pilot, we have made every effort in the past 6 years to strengthen the party and bring it to power in Rajasthan at a time when it had been reduced to an insignificant number in the state assembly. Public humiliation of our leader, Mr. Pilot, is something that is totally unacceptable to us, and those responsible for meting out this treatment need to be made accountable. We are seeking to restore our self-respect and are not clamoring for any posts and positions, contrary to false reports in the media. We have been senior members of the party for many years and have held many positions within the party and the government and are not lured by inducements."
Considering the present situation in Rajasthan, BJP state unit has also called a meeting at the party office in Jaipur. Speaking before the meeting, state BJP President Satish Punia said that the Congress has been claiming that their leaders are united, but it's clear that there are internal disputes, because of which Sachin Pilot had to leave the party after facing humiliation. He added that at present, the party is not demanding a floor test. And for all the latest, और पार्टी अंतर्विरोध और अंतर्कलह की शिकार थी। नतीजा ये है कि अपमानित होकर सचिन पायलट को कांग्रेस से अलग होना पड़ा। और जब इस तरीके की चीजें होती हैं तो निश्चित रूप से वो सरकार जनता के मनों से उतर जाती है। पहली प्राथमिकता ये थी कि ये अराजक सरकार थी और इसने भ्रष्टाचार के सारे मापदंड ध्वस्त कर दिए। कोरोना जैसे कालखंड में भी जिस तरीके से भ्रष्टाचार की खबरें आई, कुप्रबंधन की खबरें आई, अपराधों की जिस तरीके से झड़ी लगी, तो मुझे लगता है कि सरकार नैतिक रूप से कमजोर हो गई थी। And joining us now is Ajay Vikram Singh with all the latest on this story. Ajay Vikram, well, we are hearing a lot of different and confusing statements. While the Congress has passed a resolution, we believe the state Congress in Rajasthan are passing a resolution to initiate action against Sachin Pilot, to remove him from all party posts. Sachin Pilot himself saying he has 22 MLAs with him. What are you hearing from your sources? How does the situation look right now? बिल्कुल रुकना, अभी अभी कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रणदीप सुरजेवाला ने जो अनुशासनात्मक कार्रवाई का जो सीएलपी ने प्रस्ताव पारित किया था, उसके तहत ये घोषणा की है कि सचिन पायलट सभी पदों से मुक्त कर दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष थे, वो दोनों पद से उन्हें मुक्त कर दिया गया है। गोविंद सिंह को राजस्थान का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ ही साथ दो अन्य जो मंत्री थे उनको भी पदमुक्त कर दिया गया है। निश्चित तौर पर ये सुबह से ही स्थितियां थी कि आज जब दूसरी बार सीएलपी की बैठक बुलाई गई, उसके बाद ही ये बात स्पष्ट थी कि अगर सचिन पायलट का गुट नहीं पहुंचता है बैठक में, तो उसे निश्चित तौर पर एक अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और उसी के तहत इसे लिया गया। हालांकि प्रस्ताव पारित होने के बाद उस प्रस्ताव को एक बार फिर से कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के पास भेजा गया था और उस शीर्ष नेतृत्व की हरी झंडी के बाद ये फैसला लिया गया है। कांग्रेस का ये कहना है कि सचिन पायलट को 26 साल की उम्र से 2003 से लगातार कांग्रेस में बड़े बड़े पदों से नवाजा गया। 26 साल की उम्र में वो सांसद बने, पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, उसके बाद केंद्रीय मंत्री रहे 30 साल की उम्र में, उसके बाद 35 साल की उम्र में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और अभी वो उप मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे राज्य में और राज्य के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। इसको शीर्ष नेतृत्व ने इस बात को बर्दाश्त नहीं किया और शीर्ष नेतृत्व का कहना है कि लगातार सचिन पायलट को जिस तरह से मौके दिए गए, जिस तरह से उन्हें आगे बढ़ाया गया, जिस तरह से व्यक्तिगत तौर पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी उन्हें अपना स्नेह देती थी, और बार बार कल ये बताया जा रहा है शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कि पिछले 72 घंटों में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों ने सचिन पायलट से बार बार बात की, बार बार उन्हें समझाने की कोशिश की। आज भी प्रियंका गांधी ने उनसे बात की थी और भावुक अपील की थी, उसके बाद भी वो नहीं माने। उसके बाद मजबूरन शीर्ष नेतृत्व को फैसला लेना पड़ा कि सचिन पायलट को अब पार्टी में किसी भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है और कठोर कार्रवाई करते हुए ये फैसला लिया गया है। Right, Ajay Vikram, also when we talk about, all in politics, as they say, that things can change, you never know what can really happen when. But does it look like a final parting of ways between Sachin Pilot and the Congress for some time at least now? जी बिल्कुल, अब सचिन पायलट जिस तरह से सरकार बनने के बाद से ही स्थितियां थी, 2018 के बाद से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो टकराव था वो किसी से छुपा नहीं था, लेकिन राहुल गांधी के भी बीच में आने के बाद कुछ शांत हुआ था। लेकिन पिछले 1.5 सालों से सरकार जिस तरह से चल रही थी, सचिन पायलट और गहलोत के बीच में टकराव था। ये बात तो स्पष्ट है कि बहुत लंबे समय तक ये जो इन दोनों नेताओं के बीच में लंबे समय तक सुलह के साथ सरकार चला पाना संभव नहीं हो सकता। और अशोक गहलोत ने राज्यसभा चुनाव के बाद स्थितियां और भी खराब हुई। जब ये सूचना मिली कि कुछ विधायकों की खरीद फरोख्त हो सकती है, अशोक गहलोत ने उसके लिए एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप बनाया और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में कि तमाम कुछ विधायकों के फोन टैप किए गए,
उन कुछ फोन टैप को, जो मेरी जानकारी है, कुछ फोन रिकॉर्डिंग को शीर्ष नेतृत्व को भी शेयर किया गया। उसमें साफ तौर पर ये आरोप लगाया गया है ये सचिन पायलट सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे थे, और इसको आला कमान को बताने के बाद अशोक गहलोत ने अपना जो बैकअप प्लान है वो तैयार किया। इसके साथ ही सबसे अहम बात यह है कि किसी भी चुनी हुई सरकार को गिराने के आरोप में राजद्रोह का जो आरोप लगता है, राजद्रोह का मुकदमा चलता है, राजद्रोह का केस चल सकता है, ये बहुत गंभीर बात है। और इसकी जो नोटिस है ये सचिन पायलट को भी भेजी गई थी। इसी बात को लेकर सचिन पायलट काफी खासे नाराज चल रहे थे। अब ये स्थितियां हैं कि चूंकि पार्टी ने इतना कठोर कदम ले लिया है, सचिन पायलट को सोचना होगा कि वो किस तरह से अपनी राजनीति आगे ले जाते हैं। सचिन पायलट गुट से आज सुबह भी और कल भी ये साफ संदेश आया कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होने जा रहे। तो निश्चित तौर पर ये आगे देखने वाली बात होगी कि वो कौन सा रास्ता अख्तियार करते हैं। खबर ये मिल रही है कि सचिन पायलट को अपने विधायकों के साथ कोई अपना नया गुट या नया दल बना सकते हैं, लेकिन अभी काफी प्रीमेच्योर बात है। देखने वाली बात होगी कि सचिन पायलट की तरफ से भी कोई ऑफिशियल अभी तक कोई बयान नहीं आया है। सचिन पायलट क्या कहते हैं इस पर सबकी नजर रहेगी। Right, all eyes on Sachin Pilot. The Pilot camp is demanding the removal of Ashok Gehlot, Ajay Vikram. It's unlikely from the numbers, the way the numbers are stacking up, that this will happen right now. But how does this affect his defection? How does it affect the Congress as it does after? जी बिल्कुल, आपके सवाल के दो पक्ष पार्ट में उत्तर देना चाहूंगा। पहला ये कि राज्य में जो सरकार की स्थिति है, अशोक गहलोत ने केंद्रीय नेतृत्व को आश्वस्त किया है कि राज्य में सरकार को कोई संकट नहीं है, और कल सीएलपी की बैठक के बाद उन्होंने दिखा दिया कि विधायकों की विधानसभा है उसमें 101 विधायक चाहिए हाफ मार्च के लिए के पास है। हालांकि ऑफिशियली कांग्रेस ने कहा है कि उनके पास 109 विधायकों का समर्थन पत्र हासिल है। इस लिहाज से फिलहाल अशोक गहलोत की फौरी तौर पर सरकार को कोई संकट तो नहीं दिखता है, लेकिन ये बहुत ही मार्जिन का नंबर है, ये कभी भी नंबर कम ज्यादा हो सकता है। इसलिए बहुत ही आश्वस्त होने के लिए अशोक गहलोत के पास कोई वक्त नहीं है। वो आगे क्या करते हैं देखने वाली बात होगी। दूसरी बात, पार्टी के भीतर जो स्थितियां हैं, सचिन पायलट की एक अपनी खासी स्थिति राज्य में। Ajay, we are getting Dharmesh Bharti right now with us, who is on the ground there in Jaipur. Dharmesh, well, we believe that Sachin Pilot has been removed from all party posts and state positions as well after what he has done. His camp is demanding removal of Ashok Gehlot. That's quite unlikely from the numbers. Are we looking at a final parting of ways between Pilot and his camp and the Congress? And how big a loss would you say it is for the Congress? देखिए, अब देखिए, ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि पार्टी ने, जो कांग्रेस पार्टी है, वो अपनी कार्रवाई कर चुकी है। लगातार पिछले 3 दिन से कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो जैसा कि वो दावा कर रहे थे कि वो सचिन पायलट से संपर्क बनाए हुए हैं, संवाद करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया, रणदीप सुरजेवाला ने यहाँ कहा कि हम लगातार 3 दिन से सोनिया गांधी और उसके अलावा कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो लगातार उप मुख्यमंत्री और जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे सचिन पायलट, उससे लगातार संपर्क कर रहे थे और बार बार ये कह रहे थे कि पार्टी फोरम पर आकर अपनी बात रखें। कल सीएलपी की बैठक में उन्हें आने के लिए आमंत्रण दिया गया था, लेकिन जब वो कल नहीं आए तो आज फिर यहां पर बैठक रखी गई और बैठक में फिर उनसे ये कहा गया कि आप बैठक में आए और बैठक में शामिल होकर अपनी जो भी बात रखनी है वो आप रखें। लेकिन सचिन पायलट जो है वो अपनी बात के ऊपर अड़िग थे। उनकी जो डिमांड थी उस डिमांड के ऊपर वो अड़िग थे। उनका कहना था कि अगर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहेंगे तो वो किसी भी स्थिति के अंदर बैठक में शामिल नहीं होंगे। तो आज एक प्रस्ताव यहां पर पारित किया गया कांग्रेस विधायक दल द्वारा। एक स्वर के अंदर यह कहा गया कि जो पार्टी के अनुशासन को नहीं मानते या पार्टी का जो लाइन ऑफ एक्शन है अगर उसको नहीं मानते तो उसके खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। जो संसदीय कार्य मंत्री है शांति धारीवाल, उन्होंने प्रस्ताव रखा और एक स्वर के अंदर सभी जो कांग्रेस के यहां मौजूद विधायक थे उसने उसका समर्थन किया। उसके बाद यह स्पष्ट हो गया था कि अब अनुशासनात्मक कार्रवाई के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आता। तो उसके बाद जो है यहां पर
प्रस्ताव पास हुआ, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जब बात हुई तो सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया। साथ में जो उनके मंत्री हैं रमेश मीणा, जो खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री थे, जो उनके खेमे के माने जाते थे, उन्हें भी हटा दिया गया। उसके अलावा पर्यटन मंत्री हैं विश्वेंद्र सिंह, उनको भी उनके पद से हटा दिया गया है। तो हाल फिलहाल स्थिति यह है कि कांग्रेस पार्टी जो कहीं ना कहीं ये प्रयास कर रही थी कि किसी प्रकार का कोई समझौते का फॉर्मूला निकल कर आए और सरकार पर किसी प्रकार का संकट ना आए, वो ऐसा लगता है कि अब कोई स्थिति बची नहीं है। अब पूरा का पूरा मामला स्पष्ट हो चुका है, मामला जो है वो आर पार का क्लियर हो गया है। सचिन पायलट को जो है कांग्रेस पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष पद से और उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया है और साथ में जो अब उनके विधायक हैं, अब उनके खिलाफ और क्या कठोर कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात है। लेकिन हाल फिलहाल जो एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी वो अब स्पष्ट हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। सचिन पायलट का रास्ता अलग हो चुका है और अशोक गहलोत जो हाल फिलहाल ये दावा कर रहे हैं कि 100 से अधिक विधायक उनके साथ हैं, वो भी हाल फिलहाल अपनी जगह पर कायम है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि कितने विधायक आने वाले समय में उनके साथ रहते हैं या क्या राजनीतिक घटनाक्रम क्या परिवर्तित होता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। Right, Dharmesh, and even as the Congress moves on, it appears, because it's already appointed a new state party president. Tell us more about the new state party president. Was his name on the cards? Was he the most likely contender? How did his name crop up? Also, we'd like your analysis of how this incident of Sachin Pilot having to leave the party, coming so soon after Jyotiraditya Scindia's exit in Madhya Pradesh. How does it look for the party now? देखिए, जहां तक सचिन पायलट का पार्टी से जाने का सवाल है, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये साफ नजर आ रहा था कि जो उनकी मांगे हैं, उनका स्पष्ट मांग ये थी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तुरंत हटाया जाए और उसके बाद ही वो किसी प्रकार की बात करने के लिए तैयार होंगे। तो ये जो एक मांग थी, ये कहीं ना कहीं, और वहीं जब कल बैठक हुई तो काफी संख्या के अंदर विधायक जो है वो अपना समर्थन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में जता चुके थे। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो एक समझाइश या समझौते की जो कोशिश है वो कामयाब। कल भी हम जब बात चली थी तब हमने ये कहा था कि लग रहा है कि पायलट का ये जो कदम है ये अंतिम अध्याय है कांग्रेस की राजनीति में उनका, ये कल भी हमने कहा था। और आज जो कदम था, या कल जो बार बार ये डिमांड कर रहे थे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को हटाने के बाद ही वो कोई बात करेंगे, तो ये साफ लग रहा था कि करीब करीब वो तय कर चुके हैं कि उनका रास्ता अलग है। और जहां तक राजनीतिक उनके भविष्य का सवाल है, ये तो आज कहना बड़ा मुश्किल है कि आगे वो किस प्रकार के अपने पत्ते खेलते हैं और क्या कदम अगला वो उठाते हैं। जहां तक नए जो पीसीसी अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, वो वर्तमान में यहाँ शिक्षा मंत्री हैं, सीकर के इलाके से आते हैं, जाट समुदाय से आते हैं, किसान वर्ग से आते हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो एक तरीके से सचिन पायलट भी जो है किसान जाति से आते हैं और गुर्जर जाति से आते हैं। तो एक ओबीसी की जगह एक दूसरे ओबीसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना, एक तरीके से मामले को सेटल करने का कांग्रेस ने अपने स्तर पर प्रयास किया है। लेकिन यह तो आने वाला समय बताएगा कि कितना मामला सेटल हो पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं दौसा और कई जगह पर सचिन पायलट को हटाए जाने के विरोध में प्रदर्शन भी हुआ है। तो ये सब आने वाले अब समय पर निर्भर करता है पायलट अगला कदम क्या उठाते हैं। जी Right, and when we talk about the vacuum that he leaves behind in the Congress party, he is also, it appears, Dharmesh, taken 22 MLAs with him. Is that a big loss, or because the Congress party says 109 MLAs are with the party and with Gehlot? So tell us more about the numbers as they stack up. देखिए, इसमें एक बात आपको बहुत अच्छे से समझनी होगी कि सचिन पायलट के साथ जो जाने वाले व्यक्ति हैं, चाहे वो हेमाराम चौधरी हों, वो बाड़मेर के कम से कम 7-8 बार वो विधायक रह चुके हैं, काफी वरिष्ठ नेता हैं, उस क्षेत्र में अपनी एक अच्छी पकड़ रखते हैं। ठीक इसी प्रकार जो भंवरलाल शर्मा है, वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और एक अपनी उस क्षेत्र के अंदर काफी पकड़ रखते हैं और कम से कम 5-6 बार एमएलए रह चुके हैं। इसके अलावा विश्वेंद्र जो है वो पूर्वी राजस्थान के अंदर भरतपुर के अंदर एक बड़े नेता हैं। इसके अलावा दीपेंद्र सिंह शेखावाटी के बड़े नेता हैं। तो अगर आप इसको जमीनी स्तर के ऊपर देखा जाए तो पायलट युवाओं के साथ काफी जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, जिनका काफी लंबा करियर कांग्रेस में रहा है और कांग्रेस के अंदर उनका वजूद रहा है और धरातल पर भी उनका वजूद रहा है, तो वो उनके साथ हैं। तो ये तो निश्चित आप मानिए कि इनका जाना कहीं ना कहीं कांग्रेस को धरातल पर नुकसान जरूर देगा। ये बात तो आपको माननी होगी। युवाओं के साथ साथ ये जो वरिष्ठ नेता भी छोड़कर गए हैं, तो ये साफ संकेत है कि नुकसान निश्चित रूप से आज नहीं कल या आने वाले जो चुनाव है उसमें इसका परिणाम कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन जो है आपको देखने को जरूर मिलेगा।
Right, Dharmesh, thank you so much for joining us there. We'll be back with you throughout the day as the situation continues from there. And thank you so much for your inputs right now. And we have Congress leader Surjewala reacting to the situation in Rajasthan as it is now. Let's listen in. ने कुछ निर्णय लिए हैं जिनकी व्याख्या करने के लिए बीच में आपके मैं उपस्थित हूं। पहली बात, श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और मीना जी और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। दूसरा, हमारे बहुत तजर्बेकार और काबिल साथी जिन्होंने किसान के घर में जन्म लिया, जो ओबीसी से संबंधित हैं, जिन्होंने अपनी जमीन भी जोती और कांग्रेस की जमीन भी जोती, जो एक कार्यकर्ता के तौर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर से उठकर आए और आज राजस्थान की शिक्षा मंत्री के तौर पर सेवा कर रहे हैं, गोविंद सिंह दोतासरा जी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया जाता है। And Corps Commander level talks between India and China are currently underway at Chushul in eastern Ladakh. This is the fourth round of talks at the Corps Commander level. According to sources, after the first round of talks, Chinese troops withdrew from the Galwan Valley according to the agreed upon procedure. Further, according to reports, the Chinese army has also reduced its presence on the ridgeline of Finger 4 in the last 1 week. Also, Chinese have withdrawn from their positions at point 14, 15 and 17 as per reports. And the United States has once again voiced its concern over China's aggressive expansionist policy. US Secretary of State Mike Pompeo has stressed that the world will not allow Beijing to treat the South China Sea as its maritime empire. He said that Beijing's claims to offshore resources across most of the South China Sea are completely unlawful, as is its campaign of bullying to control them. And the United States has once again voiced its concern over China's aggressive expansionist policy. US Secretary of State Mike Pompeo has stressed that the world will not allow Beijing to treat the South China Sea as its maritime empire. Union Minister Nitin Gadkari virtually inaugurated and laid the foundation stone of economic corridor projects worth 20,000 crore rupees in Haryana today. The projects for inauguration included 4-lane Rona Hasangarh to Jhajjar section, 4-laning of Punjab-Haryana border. The projects for laying foundation stone included 6-lane access control Greenfield Expressway, 4-lane Gurugram Pataudi Rewari section and 4-lane Rewari bypass. The strategic economic corridor will boost industrial activity in the country and will bring prosperity and growth for the state of Haryana. Union Minister said that the government is committed to create 5 crore jobs in MSME sector in the next 5 years. He added that 11 crore jobs are being created from MSME. आने वाले 5 साल में 5 करोड़ नए जॉब्स क्रिएट करने का मैंने संकल्प किया है। अभी हमारे देश में एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन 29%, 30% है। हमारे देश का 48% एक्सपोर्ट एमएसएमई से होता है और 11 करोड़ जॉब एमएसएमई में क्रिएट हुए हैं। और मैं चाहता हूं कि अभी हमारे यहाँ जो विलेज इंडस्ट्री करके है, इसका टर्नओवर हमारा पिछले मार्च एंड तक 88,000 करोड़ था। And a delegation of BJP leaders comprising Kailash Vijayvargiya, Arvind Menon, Babul Supriyo, Swapan Dasgupta and Raju Bista called on President Kovind at Rashtrapati Bhavan today.
They apprised him of the deteriorating law and order situation in Bengal. The delegation also handed over a memorandum to the president. Following the meeting, Kailash Vijayvargiya said that the party demanded CBI probe into the cold-blooded murder of Debendra Nath Ray, as the party does not trust any agency of the Bengal government. He added that such a government has no right to remain in power. Meanwhile, the BJP is observing a 12-hour bandh in the districts of North Bengal to protest over the death of BJP MLA from Hemtabad, Debendra Nath Ray. Debendra Ray's body was found hanging in Bindal near his village home. विधायक को रात को 2 बजे घर से बुलाकर टांग दिया, फांसी पे लटका दिया। ये पहली घटना नहीं, इसके पहले पुरलिया में भी हमारे कार्यकर्ताओं के साथ इसी प्रकार की घटना हुई थी। कुल मिलाकर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का काम करना एक बहुत ही मुश्किल हो गया है, और एक जब जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो क्या ऐसी सरकार को बने रहना चाहिए। हमने महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग की है कि हमें वहाँ की किसी भी एजेंसी से कोई विश्वास नहीं है, इस प्रकरण की सीबीआई जांच करना चाहिए, और साथ ही ऐसी सरकार को अब बने रहने का कोई अधिकार नहीं है जहाँ पर जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं रह सके, और इसलिए यह सरकार तत्काल इस भंग करना चाहिए। इस संबंध में आपको गवर्नर से रिपोर्ट मंगाना चाहिए। ये 2 मांगे हमने महामहिम राष्ट्रपति जी से की है। And that's all we have for you in this edition of the news. Namaskar.